خدا نے میری طرف سے تمام بہنوں بھائیوں اور بچوں کو سلام دعا قبول ہو۔ خدا میں آپ کا خادم بھائی برکت پاسٹر برکت آپ کے سامنے ہے، اور آج خدا کا شکر کریں۔ آج کا دن خدا نے ہماری زندگی میں بخشا، اس کے لیے آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ مسیح میں ہمارے جلالی ابد پتا، تیری تعریف ہو، تیرا شکر ہو، فضل کرم رحم مہربانی و برکتوں کے لیے جو تو نے اے خداوند ہم پر کی اور ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا۔ نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اے خداوند ہر طرح کی آئے خداوند دنیاوی اور روحانی نعمتوں سے نوازا۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری یسوع نام کی جے ہو۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگا سن بخش دے، آمین۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کا جو پیغام ہے میں یہ درخواست کروں گا آپ لوگ خود سنیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سنائیں۔ میری خواہش ہے کہ یہ پیغام جو ہے یہ سب تک پہنچے، جتنے لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں اسے ضرور پہنچائیں۔ اور یہ پیغام کیا ہے، آئیے ہم اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے۔ ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ مسیح میں ہمارے جلالی ابد پتا، تیری تعریف ہو، تیرا شکر ہو، تیرے فضل کرم رحم مہربانی اور برکتوں کے لیے اے خداوند جو تو ہمیں دیتا ہے باسوانی۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ آج کے اس کلام کو جو اے خداوند میں تیرے لوگوں میں بانٹنے کو، اسے مجھے عقل دانش فہم اور سمجھ دے، روح کا تازہ مسا دے، تاکہ تیری مرضی کے مطابق ان کو اے خداوند پیش کر سکوں۔ اے خداوند اس میں تیرے یسوع نام کو جلال میں، یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگا سن بخش دے، آمین۔ میرے عزیزوں، یہاں اس سے پہلے کہ میں پیغام کو شروع کروں یا خداوند کے کلام کو شروع کروں، میں ایک بات سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سننے والوں میں سے کوئی ایسے تو نہیں ہیں جو بے وقوف ہیں؟ اگر تو ہم بے وقوف ہیں یا ہم سننے والوں میں سے کچھ بے وقوف ہیں تو ان کے لیے بیکار ہے یہ کلام۔ لیکن اگر بے وقوف نہیں تو پھر اس کلام سنیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ پریز دا لارڈ۔ اور میں جانتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اس میں بے وقوف نہیں ہے، کیونکہ کلام جو ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو کہ نجات پانے والوں کے لیے ہے۔ اور جو نہیں سنتے بالکل ایسے ہی جھاڑیوں میں اگایا اور اسے جھاڑیوں نے دبا دیا، پتھریلی زمین پر بویا، پرندوں نے آ کے چن لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے کلام کا سننا اور سنایا جانا وقت ضائع کرنے کی بات ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کریں؟ کیونکہ صلیب کا پیغام، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ صلیب کا پیغام، اور میں کہوں گا صلیب ایک خود پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام، صلیب کے اندر سے ایک پیغام نکلتا ہے۔ صلیب ایک پیغام ہے۔ وہ کس طرح؟ جب بھی اگر ہم صلیب کے بارے میں صرف غور کریں تو آپ کو میں ایک بات کا ذکر کر دوں کہ روم کے دور میں، روم کی جب حکومت تھی، اس وقت جو بھی حکومت کی بغاوت کرتا تھا، جو بھی باغی لوگ ہوتے تھے، ڈاکو چور اس قسم کے، ان کو سزائے موت نہیں دی جاتی تھی بلکہ ان کو صلیب پر ٹانگ دیا جاتا تھا۔ لیکن جتنے لوگوں کو یسوع کے دور سے پہلے اور بعد میں ٹانگا گیا، کہیں کسی کا کوئی ذکر نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ تین لوگوں کا، یہ تین ڈاکو، کہ دو ڈاکو اور تیسرا یسوع مسیح، یہ تین کا ایک خاص ذکر آتا ہے ہسٹری کے اندر، تاریخ میں اور دنیا میں۔ تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ صلیب کا، جیسے میں نے کہا، صلیب ایک پیغام ہے۔ تو جب بھی کوئی بات آتی ہے، صلیب کو لے کے دیکھتے ہیں، صلیب کی طرف نظر پڑتی ہے تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے،
वो है यीशु का हैंग किया जाना। वहां उस दौर में बेशक बहुत से लोगों को हैंग किया गया, किसी का कोई निशान नहीं नजर आता, लेकिन एक पैगाम मिलता है कि हाँ जी यीशु, उसको हम सोच लेते हैं कि हाँ जी यीशु का हैंग किया जाना। जहां सलीब होती है, मसलन किसी घर में आप सलीब को लटकी हुई किसी के दरवाजे पे देखते हैं, तो आप ये समझ जाते हैं ये जरूर इसका ताल्लुक जो है मसीहत से है। मुझे सलीब पसंद है, मैं सलीब को पहनना, मेरे कोट पर आप सलीब नजर आ रही होगी, सलीब को पहनना, सलीब को अपनी गाड़ी में लगाना, सलीब मैंने एक अंदर भी, शर्ट के अंदर भी पहन रखी है, अपने सारे बच्चों को मैंने सलीबें पहना रखी हैं, मैंने अपने घर के दरवाजे पर सलीब लगा रखी है, जिस घर को मैं जाता हूं, जिस घर में मैंने आज तक तब्दील की है वहां पे मैं सलीब जरूर लगाता हूं, जो गाड़ी तब्दील करता हूं उसमें सलीब जरूर लगाता हूं, जब भी कोई नया सूट खरीदता हूं, कोट पहनता हूं तो उसके अंदर सलीब लगा, ऐसा नहीं कि मैं सलीब को उतार के दूसरे में लगाऊं, नहीं, मैंने उसके अंदर एक और सलीब लगाई होती है। मेरे बच्चों के बच्चों को भी मैंने सलीबें पहना रखी हैं, क्योंकि सलीब हमारा निशान है, सिर्फ निशान नहीं, मुखलसी है हमारे लिए मुखलसी का एक निशान है। तो मैंने जैसे कहा कि सलीब एक पैगाम है, एक खामोश पैगाम है। तो अब हम आगे चलते हैं। सलीब का पैगाम जो है ये हमारे लिए खास पैगाम है। मेरे अजीजों, अब ये सलीब होती काय की है, मैंने स्टील की लगाता हूँ, मैंने स्टील की पहनी हुई है, मैंने सोने की भी पहनी हुई है, अपने बच्चों को मैं सोने की पहनाता हूँ, मैं अपने बच्चों के बच्चों को भी मैंने सोने की पहनाई हैं। लेकिन सलीब बनती काहे की थी, जिस पर यीशु को लटकाया गया, वो काहे की थी? लकड़ी की। आज जो मैं ये बात करने वाला हूँ, प्लीज उसे गौर से सुनिए। वो सलीब काहे की थी? लकड़ी पर की थी। और कलाम मुकद्दस कहता है वो जो लकड़ी पर लटकाया गया है वो लानती है। हम कहते हैं, हमने सुना है कि लानती मौत, यीशु जी लानती मौत मरा। कभी किसी से पूछे लानती का मतलब क्या है, कैसे वो हम साबित कर सकते हैं कि वो लानती मौत मरा? इसलिए वो सलीब पर मरा, इसलिए हम लानती मौत कहते हैं। जरा गौर कीजिए, यीशु जो है, हम कहते हैं वो लानती मौत मरा, उसने हमारी लानत उठा ली। यार ये कैसे है, जरा एक्सप्लेन तो करें। मैंने कई लोगों से डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं कर सका। लेकिन मैं खुदावंद की रूह का मसा का शुक्र करता हूं जिसने मुझे इस बात को समझाया, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सलीब मैंने जिक्र किया, ये लकड़ी की बनाई जाती है। ये लकड़ी कहां से आती है? लकड़ी दरख्तों से आती है। अब हम इस दरख्तों के बारे में थोड़ा गौर करेंगे। तो ये दरख्त जो हैं, हम चलते हैं बाग अदन में। बाग अदन में बहुत से दरख्त लगाए गए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो दरख्तों का खास जिक्र किया जाता है, वहां जिक्र किया गया है। खुदावन ने जब आदम को क्रिएट किया तो उसे बाग अदन में कहा कि ये दो दरख्त हैं जो बीच में लगाए गए हैं। एक दरख्त कौन सा है? नेक व बद की पहचान का दरख्त। एक दरख्त कौन सा है? नेक व बद की पहचान का दरख्त। और दूसरा दरख्त हयात का दरख्त। बड़े क्लियर लफ्ज लिखे हैं, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं ताकि टाइम जाया ना हो। दो दरख्तों का जिक्र है, एक दरख्त हयात का दरख्त, दूसरा नेक व बद की पहचान का दरख्त। खुदावन ने क्या कहा कि हयात के दरख्त में से फल ना खाना या खा लेना? नहीं, उसने इंसान से, आदम से मुखातब होकर कहा कि नेक व बद की पहचान का दरख्त मत खाना। कौन से दरख्त का? नेक व बद की पहचान का दरख्त जो है उसका फल मत खाना। तेज चलेंगे। तो आदम ने क्या किया? जिस सर्कमस्टेंसेस को, शैतान, सांप को ले लीजिए, हवा को ले लीजिए, सब को ले लीजिए, लेकिन उसने फल किस दरख्त में से खाया? नेक व बद की पहचान के दरख्त में से उसने फल खाया।
हवा ने खाया और आदम को भी खिलाया। ये नहीं कौन से दरख्त का फल खाया, नेक व बद की पहचान के दरख्त में से फल खा लिया। फल खाने के बाद खुदावन ने देखा ओ ये क्या हो गया। तो वहां साफ लिखा है कि जब खुदावन ने देखा कि ऐसा ना हो कि ये हयात के दरख्त में से भी फल खा ले, तो उसने पहला काम ये किया कि आदम को वहां से बाग़ एदन से निकाला। पहला काम बाग़ एदन से निकाल दिया और उसको सजा दी। अब पहले हम हयात के दरख्त के बारे में बात करते हैं। हयात के दरख्त के बारे में लिखा है पहले बाप में ही कि उस खुदावन ने क्या किया, उसके गिर्द 16 जन तलवार लगा दी। एक आग वाली तलवार उसकी हिफाजत करने लगी ताकि कोई उसमें से फल खाने ना पाए, यानी आदम और हवा उसमें से फल ना खाने पाए, यानी कोई भी उस फल के करीब ना जा सके। तो वो फल जो है वो दरख्त जो वो 16 जन तलवार की जद में आ गया। अब हम दूसरे दरख्त पर आते हैं। अगर हम उसको दरख्त में थोड़ा सा और गौर करें तो उसके बाद पूरी बाइबल में हमें 2-3 जगहों पे नज़र आता है। मुकाशवा में और हवाला हमें नज़र आता है, यूहन्ना की इंजील में नज़र आता है। तो वहाँ पे हमें लगता है कि यूहन्ना 3 बाब और 16 आयत में है हयात के दरख्त के बारे में पैदाइश 3 बाब में है एक 16 जन तलवार जो उस दरख्त की हिफाजत करती है। उसके बाद मुकाशवा में है 22 बाब में एक जिंदगी का दरख्त जो वही जो जिसके गिर्द 16 जन तलवार थी। खुदावंद ने कहा मैं उसमें से फल खाने को दूंगा, अभी दिया नहीं है। फिर इसी तरह मुकाशवा में हमें एक और हवाला नजर आता है और उसमें भी लिखा है कि वो दरख्त जो फिरदौस में है उसमें से फल खाने को दूंगा। फिर मुकाशवा 2 बाब में भी इसका जिक्र है। ये 3-4 हवाले हमें नजर आते हैं, लेकिन वहां हर जगह इस दरख्त की लकड़ी की हिफाजत की गई है, इसके फल की हिफाजत की गई है। तो हम सोचना छोड़ दें कि उस लकड़ी से सलीब बनाई गई। सलीब किसकी बनाई गई, किस लकड़ी की बनाई गई, किस दरख्त की बनाई गई, तो वो हम देखते हैं। जब बाग़ एदन से आदम को निकाला गया तो उसे एक सजा दी गई। उसे कहा अब तू जमीन में पैदावार करेगा, मेहनत करेगा और खुद लगाएगा। पहले खुदावंद ने उसके लिए पौधे लगाए, दरख्त लगाए, सब कुछ लगाया। अब जो है आदम से ये कहा कि तू जा मेहनत मजदूरी कर, तेरा पसीना निकलेगा और फिर तू उगाएगा और पैदावार पैदा करेगा। लेकिन जमीन जो है गुनाह के सबब से लानती हुई और क्या करेगी, वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। यानी जो भी दरख्त जमीन से उगेगा वो लानती जमीन से होगा और वो हमारे लिए लानत का बायस होगा। वो जितनी भी लकड़ी हमने करते हैं या होती है वो उस जमीन से जो गुनाह के सबब से लानती हुई वहां से निकलती है। और उन्हीं लकड़ियों से क्या बनाई गई, सलीब बनाई गई। जो भी चीजें जमीन से निकलती हैं वो जमीन की लानत का रिजल्ट है। हम जमीन से पौधे, फल, हर चीज को हासिल करते हैं, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं, सीजनल होते हैं। गर्मियों में कुछ पौधे हैं जो गर्मियों में खत्म हो जाते हैं, कुछ है जो सर्दियों में खत्म हो जाते हैं। फल हैं हम खाते हैं, थोड़ा उसके बाद उसका सीजन होता है, उसके बाद उनके दरख्त सूखे हो जाते हैं। हम फल खाते हैं, हमें तकवीयत मिलती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मिलती है, क्योंकि ये लानत जमीन की चीज दी हुई है। लकड़ी वहां से हासिल की गई और उस लकड़ी से क्या बनाई गई, सलीब बनाई गई। और जिस सलीब पर यीशु को लटकाया गया, इसलिए उस लानती जमीन की लकड़ी को लिया हुआ और उस पर लटकाया गया यीशु। इसलिए हम कहते हैं
کہ उसने, और कलाम मुक़द्दस में साफ लिखा है कि वो जो ऊंचे पर चढ़ाया गया, जिस तरह बियाबान में सांप को ऊंचा चढ़ाया गया, इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए। ये है लानत। और यस्सु ने वो जमीन की लानत की लकड़ी को अपने ऊपर लिया और उस सलीब पर अपने आप को हैंग किया। मेरी और आपकी वो जमीन की लानत, गुनाह की लानत को उसने लिया और सलीब पर चढ़ गया। ये है सलीब का पैगाम। जब हम सलीब को देखते हैं, जब हम सलीब को कहीं भी निशान देखते हैं, तो हम जानते हैं कि इनका ताल्लुक जरूर क्रिश्चियनिटी से है, मसीहत से है। तो पहला सलीब का पैगाम, सलीब का पैगाम मैंने पहले आगे कहा है, हलाक होने वालों को तो हम भूल जाएं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि ये बेवकूफ़ों के लिए है हलाक होना। हम अगर गुनाह में पड़ते हैं तो बेवकूफ़ी करते हैं। मैंने पिछले दिनों में एक कलमा पेश किया जिसमें कहा कि मसीह ने कहा, खुदा मसीह ने सलीब पर कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। लेकिन हम मेरे अजीजों जानते हैं कि क्या करते हैं। उन लोगों को पता नहीं था, हमें पता है चोरी करना गुनाह है, धोखा देना गुनाह है, बेईमानी करना गुनाह है। जो गुनाह है कलाम मुक़द्दस यहाँ तक करता है, कहता है कि जो नेकी करना जानता है और वो नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि हमें कलाम खुदावंद का कलाम हमें मिल चुका है। हम जानते हैं गुनाह है क्या। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। मेरे अजीजों, हम मौत को गले खुद लगाते हैं। हम गुनाह करते हैं और गुनाह पर गुनाह करते हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। अगर हम उस पर ईमान ही नहीं लाते तो हम, मेरे अजीजों, हलाकत की तरफ दाखिल होते हैं। उसने हमारे तमाम गुनाह की दस्तावेज मिटा डाली है। किसकी बदौलत? अपने खून की बदौलत, उस सलीब की बदौलत। उस सलीब पर उसने अपने आप को, उस लानत पर अपने आप को हैंग कर लिया ताकि मैं और आप निजात पाएं। आगे चलते हैं। सलीब का पैगाम बेवकूफ़ी है। बहुत से लोग इसे बेवकूफ़ी समझते हैं। नीचे वहाँ उस वक्त भी ठट्ठे मारने वाले लोग थे, शरीयत को जानते थे, लेकिन उन्होंने यीशु को ठट्ठों में, मजाक में उड़ाया। उस डाकू ने भी यीशु को मजाक उड़ाया। हम भी उसका एलानिया, उसको मसलूब करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं जब गुनाह करते हैं। हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन अगर हम यीशु को समझते हैं, यीशु को मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो हम निजात का बायस बनेंगे। निजात कैसे होती है? जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो उस पर ईमान लाता है। मेरे अजीजों, एक बात मैं यहाँ जिक्र करूँगा। सलीब को हम देखते हैं, मैंने जिक्र किया, मैं भी सलीब पसंद करता हूँ, लेकिन सलीब पर किसी मूरत का खुदवाना, मूरत वाली सलीब को लेना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं आज इस साल इस बात पर आप पर ज़्यादा गौर करना चाहता हूँ, जोर दे रहा हूँ कि इस गुनाह में शामिल ना हूँ। मैं सलीब को पसंद करता हूँ, जहाँ सलीब हो वहाँ जाना पसंद करता हूँ, लेकिन उन जगहों में जाने से मुझे मुश्किल हो जाती है जिन जगहों पर एक बड़ी सी सलीब हो और उस पर किसी इंसानी मूरत को लटकाया हो। खरूज 20 बाब को पढ़िए, वहाँ लिखा है, तो कोई मूरत ना बनाना, कोई मूरत ना बनाना जो आसमान के ऊपर या जमीन के नीचे या पानी में है, और ना उसकी पूजा करना। जब हम चर्चेज में जाते हैं, बहुत से चर्च में बड़ी बड़ी सलीबें सामने लटकाई हुई हैं, जब हम जाकर अपना सर झुकाते हैं तो खरूज 20 बाब के मुताबिक हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। मैं ऐसी जगहों से बहुत अवॉइड करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये गुनाह है।
क्यों? एक तो हमें मकाश जो खरूज है वो हमें बताता है, दूसरा मसीह खुदावन सलीब पर गया, सलीब पर लटकाया गया, उसने उस लानत को कबूल किया, सलीब पर खुद को हैंग किया और सलीब पर उसकी मौत हुई, उस लानत पर उसकी मौत हुई, हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर मौत हुई और सलीब से उतारा गया। अगर उसको उतारा गया और उसको दफनाया गया और दफनाने के बाद वो कब्र में से जिंदा हुआ, तीसरे दिन जिंदा हुआ। आज भी दुनिया में बहुत से लोग इस्राएल जाते हैं तो मसीह की खाली कब्र को देखते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मसीही नहीं दूसरे भी जाते हैं, जो हजरत ईसा की कब्र को कहते हैं खाली है। दुनिया में वाहिद एक शख्सियत यस्सु है जिसकी कब्र खाली है। अगर वो कब्र खाली है तो फिर सलीब खाली क्यों नहीं? हम अभी तक क्यों सलीब पर यस्सु को लटकाए रखते हैं? और अगर हमने यस्सु को, मैं यस्सु तो उसे कहने को तैयार नहीं, उस मूरत को हमने सलीब पर लटकाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा मसीह अभी तक दफनाया नहीं गया और जिंदा नहीं हुआ और मौत पर फाते नहीं हुआ। दूसरी वजह है कि हम जानते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा और फिर भी हम एक मूरत को सलीब पर रखते हैं, तो हम इसका मतलब है कि एक और गुनाह करते हैं। आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि जानते नहीं, लेकिन हम जानते हैं मसीह जी उठा है, मसीह को दफनाया गया। हम जानते हैं कि मसीह को मसलूब किया गया, लेकिन उसे दफनाया भी गया और वो जिंदा भी हुआ। लेकिन अगर हम उसे जिंदा नहीं करते दोबारा, मेरे अजीजों, उसको सलीब पर लटकाए रखते हैं, तो हम गुनाह करते हैं। मेरे चीज़ों, मैं पिछले दिनों में एक जगह हमने सलीब खरीदी थी, ऐसे क्रॉस खरीदी थी मेरे पोते को देने के लिए। तो मेरी मिसेज वहाँ सुनहरे की दुकान पे एक सलीब मुझे कहती, वो देखो बहुत खूबसूरत सलीब है, लेकिन उस पर एक मूरत बनाई हुई है। हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वो सलीब बहुत खूबसूरत लगी हमें, सलीब की खूबसूरती तो हमारे लिए है, लेकिन उसके ऊपर वो मूरत जो है वो हमारे लिए खूबसूरती नहीं है, क्योंकि वो मूरत जो है वो मुनाफी है, वो हमें गुनाह की तरफ राग़िब करती है। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी में इस साल एक बात को याद रखिए, कहीं भी जाएं, जहां भी जाएं, इस बात का ख्याल रखें कि हमारी सलीब खाली है और हमारे यीशु की कब्र भी खाली है। आप सलीब को उठाएं। कलाम मुकद्दस में साफ लिखा है कि अपनी अपनी सलीब उठाओ। ये नहीं लिखा उसके ऊपर किसी की मूरत बनी हो तो उसको उठाओ, नहीं, सलीब को अपनी को उठाना है। और मैं ये सलीब को पसंद करता हूं, मुझे ये सलीब पसंद है, क्योंकि मैं ऐसे कंधे पर रख के तो नहीं चल सकता, लेकिन मैंने सलीब को उठाया हुआ, पहना हुआ है। जहां जाता हूं लोग एकदम देख कर कह जाते हैं कि हाँ, ये जरूर मसीही है। प्रेज द लॉर्ड। तो सलीब एक पैगाम है। आगे चलते हैं, लेकिन हमारे लिए वो निजात का बायस भी है। कुदरत, ये कुदरत क्या है? जैसा मैंने पढ़ा, खुदा की कुदरत है। सलीब जो है, हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। कुदरत शुरू कहां से लफ्ज़ हुआ? मरियम के पास फरिश्ता आया, उसने क्या कहा? तू एक बेटे को जन्म देगी और वो उसका नाम तू यस्सु रखना। उसने कहा ये कैसे होगा? यहां से कुदरत शुरू हुई। उसने कहा ये कैसे होगा? उसने कहा रूल कुद्दस की कुदरत से होगा। उसने कहा मैं मर्द को तो जानती नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर ये कैसे होगा? उसने कहा ये रूल कुद्दस की कुदरत से होगा। और हुआ ऐसा ही। सारे मजहब जो हैं, इस्लाम इस बात का इकरार करता है कि वो बिन बाप का है, यस्सु बिन बाप से पैदा हुआ।
मरियम को मुकद्दसा का नाम देते हैं, वो बिन बाप के एक रूह की कुदरत से हुआ। अब सलीब की कुदरत कैसे है? वही जो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ। मैं आपके सामने सलीब की कुदरत बताना चाहता हूं। आप एक बहुत बड़ी सलीब ले आइए जो मेरे साथ की हो, उसे आप रखकर उसके एक कील यहाँ ठोक दीजिए, मेरे एक कील मेरे यहाँ ठोक दिए, मेरे पाँव में एक दो कील ठोक दीजिए और मुझे लकड़ी पर लटका दीजिए, उस सलीब पर लटका दीजिए और उसे खड़ा करके दिखाइए। उसे अब तसव्वुर में आप खड़ा करें तो आप मुझे ये बताइए, क्या इंसानी अक्ल मानती है कि 3 किलो के साथ या 4 किलो के साथ मेरा 78 किलो 75 किलो वजन जो है सलीब पर टिक जाएगा? नहीं टिकेगा, वो गिर जाएगा। ये बॉडी जो है, ये लकड़ी जो है इस सलीब को नहीं, जब तक उसे अच्छी तरह से टाइट ना किया जाए। तो हम यीशु को सलीब पर कैसे 3 किलो पर देखते हैं? हम मानते हैं कि वो किलो से टांगा गया, तो फिर ये कैसे हुआ? कैसे एक हैवी बॉडी को, कम से कम यीशु की भी, उसकी हाइट मुझसे ज्यादा होगी तो कम से कम 80 किलो तो वजन होगा, 80 किलो वजन जो है ऐसे किलो पर लटकाया जाए तो क्या वो लकड़ी के ऊपर, उसके ऊपर टिक सकता है? सलीब के ऊपर नहीं टिक सकता। गौर से सुनिए, सलीब यीशु को होल्ड नहीं कर सकती, बल्कि यीशु ने सलीब को खड़ा कर रखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जो है उसने सलीब को खड़ा कर रखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है उसकी कुदरत, वो कुदरत वाला है, उसने सलीब को खुद खड़ा कर रखा है, क्योंकि सलीब, उसने सलीब पर लानत को उठाना था। उसने उस लानत को उठा लिया मेरे और आपके लिए। वो जमीन की लानत, वो गुनाहों की लानत, वो लकड़ी पर जो कहा गया था कि वो जरूर है कि ऊपर लकड़ी पर लटकाया जाए, वो उसने ऊपर उठा ली और उसने उसको हैंग कर दिया, खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। ये है उसकी कुदरत। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज का ये पैगाम का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम सलीब को समझें, सलीब के पैगाम को समझें और उसकी कुदरत को समझें। मेरे और आपके लिए सलीब एक पैगाम है। उस डाकू को देखिए जो सारी उम्र गुनाह करता रहा, लेकिन वो पशेमान था, शर्मिंदा था कि मैं गुनाह कर रहा हूं। जब यीशु के पास आया सलीब पर, उसने उसके लिए खुदा कैसा इंतजाम था। खुदा ने क्या कहा? आज ही तू मेरे पास साथ फिरदौस में होगा। कौन से फिरदौस में? जिसमें उसने कहा मुकाशफा में कि उस फिरदौस में जहां हयात का दरख्त है उसमें से उस फल खाने को दूंगा। आदम को तो उसने उसके गिर शोला जन तलवार लगा दी कि इस दरख्त में से कोई फल ना खाने पाए, लेकिन उस डाकू से उसने कहा आज ही मैं तुझे वहां लेके जाता हूँ फिरदौस में और वहां तुझे फल खिलाऊंगा। मुझे और आपको भी सलीब के थ्रू हम उस फल को खा सकते हैं, लानत वाले फल को नहीं, बल्कि हयात के दरख्त के फल में से खाने को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मुकाशफा में 2-3 जगह ये वादे हैं, मेरे और आपके लिए वादे हैं कि खुदावंद उस फल में से हमें खाने को देगा। उससे लानत को उससे ख़त्म कर दिया है, लेकिन हमारे लिए ज़िंदगी का दरख्त हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। मुझे और आपको खुदावंद बरकत दे। भाइयों, हम छोटी सी बहनों दुआ करें। मसीह में हमारे जलाली अब्दे पिता, तेरी तारीफ़ और तेरा शुक्र यीशु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी, मैं दरख्वास्त करता हूँ इस वक्त जितने लोग भी इस कलाम को सुन रहे हैं, उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में सलीब का पैगाम, सलीब पैगाम और सलीब की कुदरत इनके दिलों में रूह के मसा के साथ डाल, ताकि खुदा ये ज़िंदगी को और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में, आमीन।
آج ہمارے باپ تو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصوروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ اور اس کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ باپ بیٹے القدس کے نام، آمین، ہاللویہ۔